اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک اور فکری زاویے کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ شاہد اقبال یوسفی۔ سامعین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت سعادتیں دیکھنے کو نصیب ہوئیں، اور اللہ کریم اس کے صدقے سے ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ سامعین کرام، رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس کا ایک بڑا خوبصورت تناظر بن سکتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ کیسے ہے، تو پھر اس کی دوسری حدیث پاک نے اس بات کی بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت خود بندے کی عبادت کا، بندے کے روزے کا، بندے کی نیکی کا اجر بن رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق ذوالجلال جس بندے سے راضی ہوتا ہے اور جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کو قائم کرتا ہے، روزے کے احکامات کو مکمل کرتا ہے، تو رب کائنات اس شخص کا ہو جاتا ہے، اور جب رب اس شخص کا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کائنات اس شخص کے تصرف میں کر دیتا ہے۔ پھر حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ الغرض جب وہ بولتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی زبان بندے کی چل رہی ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے فصاحت اور بلاغت خالق ذوالجلال کی قدرت کی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے پیچھے بصارت اور طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے، اسی لیے وہ کہیں بھی بیٹھ کر کائنات کے کسی کونے کو بھی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، تو دنیا سمجھتی ہے کہ شاید سننے کے لیے کان تو اسی کے ہی ہوتے ہیں، لیکن بصارت اور طاقت اور جرت اور ہمت پیچھے رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ہمیں ایک خوبصورت تحفہ ملا ہے، لیکن بہت سارے احکامات ایسے ہیں، چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے۔ پہلی چیز کہ لوگوں، روزہ کیا ہے، روزے کی حکمتیں کیا ہیں، روزہ کس طرح سے ہونا چاہیے، روزے کی اقسام کیا ہیں، کیا یہ جو ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں یہی روزہ ہے، یا اس روزے کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں، اور کیا اس روزے کے ساتھ کسی اور روزے کا بھی کوئی درجہ ہے، اس روزے کے ساتھ کسی اور روزے کی بھی کوئی احکامات اور فضیلتیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے سے مراد کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو روزے سے متعلق جو عام بات کہ صوم کسی چیز کو چھوڑ دینے کے معنوں میں آتا ہے، تو فرمایا گیا کہ روزہ کو صوم اس لیے کہا گیا کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر طلوع آفتاب سے پہلے غروب آفتاب تک رضائے خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے وہ عوامل جو اس پر حلال تھے، جو اس کے لیے اللہ کریم نے اس کے لیے بنائے تھے، یعنی کھانا پینا اور ازدواجی زندگی کو قائم کرنا خالق ذوالجلال کے لیے اور حلال طریقے کے ساتھ تھا، لیکن انسان نے اسے رب کائنات کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر وہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، مجھے میرے خالق کا حکم ہے۔ اس خوشنودی کے لیے جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے، چونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے تو ڈیفینیٹلی جس بڑی ذات کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، جس بڑے
पैमाने पर यह अमल किया जा रहा है और जिसने इतना बड़ा ऐलान फरमाया खालिक जुल जलाल ने कि मैं ही उसका अजर हूं, तो इतना बड़ा जिस अमल का अजर है तो यह भी बात लाजिम और मलजूम है कि फिर उसकी कुछ शराइत भी होंगी। उन शराइत को पूरा करके ही बंदा वहां तक उतरता है ना। ये तो नहीं कि बंदे ने अगर सुबह खा लिया और जुबान बंद कर ली, खाना पीना बंद कर लिया, सिर्फ भूखा रहने से ही रोजा कायम नहीं होता और भूखा रहने से ही फकत रब्बे कायनात की जात का असूल मुमकिन नहीं है। इसके और बहुत सारे अवामिल हैं जिन स्टेप्स से गुजरकर, जिन अवामिल से गुजरकर, जिन शराइत से गुजरकर, जिन पर चलकर फिर जाके वो रोजा नूर बनता है और वो रोजा जो उन शराइत पे पूरा उतरे वो जाकर रब्बे कायनात की जाते गरामी का हुसूल बनता है। तो उन शराइत में कुछ सादा सी बातें हैं, वो ये कि रोजे के लिए रोजे की नीयत का होना जरूरी है कि उसने नीयत की तो रोजा रखा। अब यहां मैं एक बात की वजाहत करता चलूं। एक सवाल पूछा गया, वो ये कि क्या अगर एक शख्स सो गया था, उसकी नीयत थी कि मैं सुबह उठ के सहरी करूंगा और रोजा रखूंगा, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली, वो सो गया, वक्त गुजर गया, सहरी का वक्त गुजर गया, अब वो जागा है, लेकिन तो क्या वो सारा दिन अगर भूखा रहे तो उसका रोजा हो गया? क्या रोजा मुकम्मल हुआ? तो नहीं। रोजे के लिए सहरी करना जरूरी है। वो सहरी करे, उसका एहतमाम करे। सिर्फ भूख ही तो रोजा नहीं है ना, तो इसके लिए नीयत का होना जरूरी है। इसी तरह तलुए फजर से पहले ये अमल हो और नीयत करे, हैज और नफास से पाक हो। ये बड़ा अहम मसला है खवातीन के लिए कि जो हैज और नफास के दिनों में जो आयाम मखसूसा जो औरतों के लिए होते हैं उसमें रोजा नहीं रखा जा सकता, उसमें रोजा रखने की मुमानियत है, वो रोजा नहीं रखेंगी। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाए रमजानुल मुबारक के बाद उन रोजों की कज़ा करना जरूरी है, क्योंकि ये फर्ज रोजे हैं और इन फराइज को अदा करना लाजिम है। इसी तरह फिर फरमाया कि वो जो रोजा रखने वाला है, रोजादार के लिए मुसलमान होना भी शर्त है। अगर एक शख्स अल्लाह को मानता ही नहीं और वो सारा दिन भूखा रहता है, अल्लाह को तस्लीम ही नहीं करता, वो उसकी तौहीद को नहीं मानता, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मानता, अगर वो ये अमल नहीं करता तो फिर ये रोजा उसके लिए भूख और प्यास तो है, मगर उसके लिए वो अजर नहीं है जो सरकार रब्बे कायनात ने फरमाया कि मैं खुद उसका अजर हूं। तो रब तो उसी का अजर बनेगा ना कि जो रब को मानता होगा। जो रब को मानता ही नहीं, उसे रब भी तस्लीम नहीं करता, तो फिर वो उसका अजर या उसकी कुर्बत उसको कैसे अता हो सकती है। इसी तरह आकिल और बालिग होना जरूरी है। जो रोजादार है वो अगर आकिल है यानी अकल रखता है, शऊर रखता है, उसे पता है अच्छे और बुरे की तमीज है उसे, वो जो अकल वाला है और शऊर वाला है और बालिग है, वो बलूगत को पहुंच गया है, उस पर रोजा फर्ज है, वो रोजा रखेगा। नाबालिग के लिए और वो शख्स जो दीवानगी के आलम में है, जब वो दीवाना होता है और दीवानगी में शरीयत लागू नहीं होती क्योंकि उसे अपना शऊर ही नहीं है, तो फिर वो ये अमल कैसे कर सकता है। इसी तरह अगर वो शख्स मुसलमान और तंदुरुस्त है और अपने वतन में मुकीम है तो भी उस पर रोजा फर्ज होगा, चूंकि वो मुकीम है। अगर वो किसी दारुल हर्ब में है यानी किसी दारुल कुफ्र में है और उस पर तंगदस्ती है, उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर उसे जान के जाने का खतरा है तो वो फिर और सिचुएशन होगी, उसके लिए फिर और हुक्म लागू होगा। लेकिन अगर वो दारुल अमन में है, मुस्लिम कंट्री में है, अपने घर में है या कहीं दूसरी जगह पे है और उसके पास असबाब भी मौजूद हैं, वो आकिल है, बालिग है, अगर वो औरत है तो वो हैज और नफास से पाक है, तो फिर वो रोजा रखेगा। इसी तरह एक खूबसूरत बात कि रोजे की अकसाम क्या है, जो बड़ी अहम और जरूरी बात है। शायद हमने आज तक ये सुना कि रमजानुल मुबारक का रोजा है और उसके बाद जो है वो नफली रोजे हैं, जो कोई रख ले उसके लिए बेहतर है, जो ना रखे नहीं। तो ऐसा नहीं है, रोजे की कुछ अकसाम है और वो कि रोजा फर्ज भी है, रोजा वाजिब भी है, रोजा सुन्नत भी है, रोजा मुस्तहब भी है और रोजा नफल भी है। अब इन रोजों की कौन सा फर्ज है, कौन सा रोजा वाजिब है, कौन सा रोजा नफली है और कौन सा मुस्तहब है, इसको जानने की बड़ी अशद जरूरत है। तो ये रखें। और मकरूह तंजीह और मकरूह तहरीमी भी रोजे की एक किस्म है, ये भी शामिल है। इसी तरह फर्ज रोजे
کہ रमजानुल मुबारक के रोजे रखना ये फर्ज हैं। उसके बाद कज़ा यानी रमजानुल मुबारक में अगर रोजा छोड़ दिया तो उसकी कज़ा में जो रोजे हैं वो भी फर्ज हैं, वो हर सूरत रखने होते हैं, उसके बगैर चारा नहीं। इसी तरह अगर कफारा आपने कोई अदा करना है तो कफारे के रोजा भी, अगर रोजे में कफारा आ रहा है तो फिर वो रोजे भी आप पर फर्ज हैं, क्योंकि आप वो कफारा अदा कर रहे हैं। अगर कफारा कत्ल के रोजे भी फर्ज हैं और कफारा कसम का रोजा भी फर्ज है कि अगर आपने कसम खा ली थी और वो पूरी नहीं की, वो टूट गई है, तो उसके कफारे में अगर रोजे का हुक्म आ गया है कि वो रोजा उसका कफारा होगा तो वो भी आप पर फर्ज है, वो भी रोजा रखना जरूरी है, क्योंकि वो फर्ज का दर्जा है। उसी तरह अगर आपने हालत एहराम में शिकार कर लिया या हालत एहराम में कोई ममनू काम कर लिया जो एहराम की हालत में ममनू था, नहीं करना था, तो आपने अगर वो काम किया तो उस सूरत में भी कफारे की हद में आप पर वाजिब और फर्ज हो जाएगा कि आपने वो रोजा रखना है, लाजमन रखना है। इसी तरह फिदिये के रोजे भी फर्ज हैं कि अगर आपने कोई फिदिया दिया तो उसके इवज अगर आपको रोजे रखने का कह दिया गया तो वो रोजा भी आप पर फर्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर वाजिब रोजा कौन सा है, वाजिब रोजा, वाजिब वैसे तो फर्ज के दर्जे में ही आता है, लेकिन यहां इसको एक अलग करके इसकी वजाहत कर दी गई है कि वो रोजा जो आपने नजर मानी, आपने कोई मन्नत मानी, आपने कोई अहद किया कि अगर मेरा ये अमल हुआ तो मैं इसके इवज ये अमल करूंगा या रोजे रखूंगा, तो वो रोजे भी आप पर वाजिब हैं, वो हर सूरत वो रोजा रखना है और उसको मुकम्मल करना है, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह चूंकि हुक्म आया है सूरह हज के अंदर कि अपनी नजरें यानी अपने जो आपने मन्नतें मान रखी होती हैं उनको पूरा किया करो, लेकिन चूंकि ये वाजिब के दर्जे में आता है, इसी तरह रोजा जो है वाजिब है और फर्ज भी है। और 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दिन के रोजे रखना, 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखना ये सुन्नत है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये तीसरी किस्म है रोजे की कि ये सुन्नत है 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखना। इसी तरह अय्याम बीज के रोजे रखना, बीज वैसे ये नाखून की सफेदी को बीज कहते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा था तो उनका रंग स्याह हो गया था, तो जब रंग काला हो गया तो ये जो नाखूनों का कलर है ये असल जन्नती कलर है इंसान के पूरे जिस्म का। फिर उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में और अय्याम बीज के रोजे रखे, जब रोजे रखे तो अल्लाह करीम ने उनके रंग में बेहतरी पैदा कर दी और ये गंदमी रंग उन्हें अता हो गया। इसी तरह अय्याम बीज के वो 3 चांद की जो है ना 3 दिन वो रोजा रखना जो है ना वो भी एक मुस्तहब अमल है, अगर आप रखते हैं तो अच्छा है, अगर आप नहीं रखते तो उसका कोई गुनाह नहीं है, रखेंगे तो इसका अजर होगा। एक दिन रोजा और एक दिन अफ्तार करना जिसको सौमे दाऊदी कहा जाता है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत से वो भी रोजा रखना कि एक दिन आप रोजा रखें और उसे इफ्तार करें, ये भी मुस्तहब है, अगर आप रखें तो अजर है, ना रखें तो ये इसमें कोई कदगन नहीं है। इसके अलावा जिन दिनों में रोजा रखना मकरूह नहीं है, इन दिनों में रोजा रखना नफल है, यानी वो डेज जिनमें मकरूह, बाज रिवायात में है कि जुमे के दिन रोजा रखना और ईद के दिन रोजा रखना ये मकरूह है। अगर आपने जुमे का रोजा रखना है तो उसके साथ आप कोई दिन मिला लें, या तो आप तसलसल के साथ चल रहे हैं कि आपके रोजे चल रहे हैं तो उसमें जुमा आ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन चूंकि फरमाया गया कि जुमा मोमिनों की ईद का दिन है, मोमिनीन के लिए ईद है, इसीलिए ईद के दिन रोजा रखना मना करार दिया गया, वो मकरूह करार दिया कि उस दिन तुम खाओ पियो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोजा रखना भी मकरूह तंजीह है, और उसी तरह अय्याम तशरीक और ईदैन का रोजा रखना भी मकरूह तहरीमी की सूरत में आ जाता है। ये वो रोजे की अकसाम है हाजरीन सामीन जो हमने आपके सामने अर्ज की कि रोजा फर्ज भी है, रोजा वाजिब भी है, रोजा सुन्नत भी है और रोजा मुस्तहब भी है, रोजा नफल भी है और इसी तरह से रोजा मकरूह भी है, और फिर मकरूह की अकसाम में मकरूह तंजीही भी है और मकरूह तहरीमी भी है। आगे चलते हैं।
इसी तरह रोजे की तारीख, कि रोजा शुरू कहां से हुआ, रोजे का आगाज कहां से हुआ, तो इसकी एक तो जो कतई दलील है और जो कतई तौर पर जो इसका सबूत मिलता है वो खालिक जुल जलाल का सूरह अल बकरा में जो इरशाद गरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए लोगो तुम पर, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पिछली कौमों पर फर्ज किए गए थे। अब ये जो पिछली कौमों की बात की, तो ये इस बात को तय कर दिया गया कि रोजा आज से नहीं है बल्कि पिछली उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था। इसकी कुरान मजीद ने भी दलील अता फरमा दी, और तौरात, अंजील और ज़बूर, उनका भी अगर हम मुताला करें तो वहां से भी हमें रोजे का सबूत मिलता है कि रोजा पिछली कौमों और पिछली उम्मतों पर भी फर्ज था। इसी तरह कुरैश मक्का जो है वो अय्याम जाहिलियत में भी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते थे, इसलिए कि उस दिन खाना काबा का गिलाफ जो है वो तब्दील किया जाता था। 10 मुहर्रम उल हराम को खाना काबा का गिलाफ, नया गिलाफ उस पर चढ़ाया जाता, इसलिए जो कुफार मक्का थे, कुरैश थे, वो जमाना जाहिलियत में भी रोजा रखा करते थे। और मदीना तैयबा में यहूद इस दिन रोजा रखते थे, यानी 10 चांद की 10 को वो रोजा रखा करते थे। वो इसलिए कि 10 चांद की 10 मुहर्रम उल हराम को अल्लाह पाक ने यहूद कौम को, फिरौन के बनी इसराइल को, फिरौन के जो है ना वो से निजात अता फरमाई थी। उस दिन बनी इसराइल को फिरौन के वो जो शिकंजे में फंस गए थे उनके गलबे से निजात अता फरमाई थी, इसलिए वो लोग रोजा रखते थे। और ये अहादीस इस बात पर शाहिद हैं, ये गवाह हैं कि रोजा आज से नहीं है बल्कि रोजा पहली उम्मतों से भी चला आ रहा है, पहली उम्मतों पर भी फर्ज था। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये रोजा, और ये भी मिलता है कि गारे हिरा में जिन दिनों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयाम फरमा हुआ करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई कई दिन जाते गारे हिरा में, अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की बंदगी करते, उसका जिक्र करते। तो ये भी है कि आप रोजे की हालत में हुआ करते थे। जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त भी रोजे की हालत में थे। रमजानुल मुबारक का महीना था, क्यास ये है कि आप इन दोनों रोजे रखा करते थे। इन तमाम अहदीस और वाकयात से ये बात साबित हो गई कि रोजा सिर्फ रमजानुल मुबारक और हिजरत के बाद जब मोमिनीन और मुसलमानों पर फर्ज किया गया, ये तब से नहीं है बल्कि रोजा रोजे अव्वल से और पहली उम्मतों से चला रहा है। लेकिन अब रोजा हिजरत के बाद क्यों मोमिनों पर फर्ज किया गया, उसकी वजह यह थी कि पहले उनको आदी बनाया जा रहा था नमाज का, अल्लाह की कुर्बत का, तौहीद का, रिसालत का। जब उनके अंदर ईमान रासिक हो गया, उनके अंदर ईमान पुख्ता हो गया, उनके अंदर ईमान समो गया, अब वो इस काबिल हो गए, इतने मजबूत हो गए कि उन्हें जो भी हुक्म मिलता अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वो कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते। जैसे शराब एकदम हराम नहीं की गई, एक स्टेप बाय स्टेप पहले उसकी कराहत बयान की गई, फिर हुक्म हुआ कि शराब पीकर नमाज के करीब मत जाओ। फिर जब पता चल गया कि लोगों को इसकी बदकारी का, इस बदबू का, इसकी बुराई लोगों को समझ आ गई और उनका ईमान इतना पुख्ता हो गया कि अब जो भी कहा जाएगा वो तस्लीम करेंगे, तो फिर हुक्म आ गया कि आज से तुम पर शराब हराम कर दी गई। सामीन कराम, हाजरीन और नाजरीन, ये जो हमने गुजारिशात की कि रोजे का माना और मफहूम, रोजे की अकसाम और रोजे की तारीख, आज के इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में हमने ये सीखा रोजा किसे कहते हैं, रोजा कब फर्ज हुआ, रोजे की अकसाम क्या है और रोजे की तारीख क्या है। आप मजीद मालूमात के लिए हम इसी को अगले एपिसोड में हम जो चीज़ें बयान करेंगे वो रोजे की हिकमतें हैं और रोजे के मुतल्लिक नजरियात हैं, अहकामात हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बताए गए वो फयूज़ व बरक़ात जो अल्लाह करीम अता फरमाता है। तो आप इसको देखने के लिए हमारे प्रोग्राम फिक्री ज़ाविया देखते रहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले एपिसोड में रोज़े के बाकी अहकामात के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Audio Jungle.